اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو باجی آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے ہو؟ آپ کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ۔ جی باجی آپ دعا پڑھا دیجیے پلیز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear sisters, 32 present، الحمدللہ الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 86 سے کریں گے انشاءاللہ، سوری 87 سے، 86 تک ہو گئی ہے، 87 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب لوگ اپنا پارہ کھول لیجئے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، پہلے تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے سب مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به
أيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Anam, I have hosted you. Alhamdulillah. Anam is our आपकी आवाज host. नहीं आ रही। जी बाजी, अब आएगी मेरी आवाज। आई? आई। यस, बिकॉज वो तिलावत जब लगाते हैं तो ईयरफोन उसमें नहीं लगा सकते ओके, एंड तिलावत के बाद फिर मैं ईयरफोन कनेक्ट करती हूँ। एकदम अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह, यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो अनम इज द होस्ट फॉर द डे अल्हम्दुलिल्लाह एंड 57 सिस्टर्स प्रेजेंट अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब पर अल्लाह की खूब रहमत हो। अल्लाह ताला आप सब की सारी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। हम सब को कुरान पढ़ने और समझने का सवाब अता करे और इस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता करे इंशाअल्लाह। इसी नीयत के साथ हम पढ़ेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारे अमल को बहुत ब्यूटीफुल कर दे, सुन्नत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक हमारे अमल कर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज की आयतें। उम्मीद है आप सब नाश्ता कर चुके हो, आराम से बैठे हो। अभी अपना पेन हाथ में लेना है और जो कुछ हम पढ़ते हैं ना उसे अपने पॉइंट फॉर्म में लिखा करें, बिकॉज जैसे ज़ैनबा जी भी कहती है हमेशा कि लिखा हुआ हमारे पास है ना 50 साल के बाद भी हमको मिलेगा और वो फायदा देगा, वरना हमारी मेमोरी वॉलेटाइल है, हमारी मेमोरी में से बहुत सारी चीजें निकल जाती है और लिखे हुए का सवाब भी बहुत ज्यादा है। हर इंक के हर कतरे का हमको सवाब होगा और अगर कुरान को लिख रहे हैं तो फिर सोचिए कि वो मीज़ान में जो इंक का एक ड्रॉप है ना वो कितना भारी होगा इंशाल्लाह, बिकॉज अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आयत नंबर 87 से शुरू करेंगे। जी बाजी। यस, हदीस का मफहूम है, हदीस है। हदीस का मफहूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हान ताला को शहीद के एक कतरे खून से ज्यादा स्टूडेंट, आलिम, हाँ नहीं स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, तालिबे इल्म की स्याही के एक कतरा ज्यादा पसंद है। शहीद के खून के एक कतरे से ज्यादा अल्लाह को तालिबे इल्म के यानी इंक के एक कतरा बहुत ज्यादा पसंद है कंपैरेटिवली। तो आप लोगों का अभी अपने को तो शहीद नहीं पड़ेगा, अपनी तो इंक का एक कतरा भी अल्लाह को पसंद है। तो इसीलिए जो अंजुम बाजी बोली कोई हदीस का मफहूम था। ओवर टू अंजुम। यस बाजी, मैं उसी हदीस के रेफरेंस से ही बात कर रही थी और आपने वो हदीस भी पढ़ा। यस याद आ मैं उसी हदीस के रेफरेंस से ही मैं बात कर रही थी और माशाल्लाह आपने हदीस भी पढ़ा दी, तो सोने पे सुहागा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर बाजी। चलिए आज की आयतों की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 87 से पढ़ना है हमको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वलक़द, वो और, लक़द अलबत्ता, तहकीक यानी बिला शुबा, इसमें कोई शक नहीं। आतैना, अता की हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ना यहाँ पर रॉयल हम है, अल्लाह ताला फरमा रहे अता की हमने, मूसल किताब, मूसा अलैहिस्सलाम को खास किताब, तो इसके नीचे लिख लीजिए तौरात, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल किताब के नीचे तौरात लिख लेंगे। वक़फ़ैना, और पे दर पे भेजे हमने, एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, भेजे हमने यानी अल्लाह ताला ने भेजे, मिम बादिही, बाद उसके, मिम बादिही, बाद उसके, तो ही जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आया है। बादिही, ही को सर्कल करें और उसके नीचे लिख लीजिए मूसा अलैहिस्सलाम। बिर रसूल, कई रसूल, कई रसूल, many messengers after मूसा अलैहिस्सलाम। व आतैना, और अता की हमने, फिर से रिपीट वर्ड है ये, अल्लाह ताला फरमा रहे अता की हमने, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्ने मरियम को, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को, जो मरियम अलैहिस्सलाम के का बेटा है, इब्न यानी बेटा, सन ऑफ मरियम अलैहिस्सलाम। क्या अता की हमने, अल बय्यिनात, खुली निशानियां, खुली निशानियां, क्लियर साइंस, खुली निशानियां। व अय्यदनाहु, और मदद फरमाई हमने उसकी, अय्यद हाथ मजबूत किए हमने उसके, कुव्वत दी हमने उसको, यानी ताकत दी, स्ट्रेंथ दी हमने, हु उसको, यहाँ पर हु जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, हु को सर्कल करेंगे और नीचे लिखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। कैसे मदद फरमाई अल्लाह ताला ने, बिरूहिल कुदूस, बी यानी साथ, किसके साथ, रूहिल कुदूस, रूहिल कुदूस जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए, यानी पाक रूह के साथ, रूह यानी रूह, यहाँ पर फरिश्ते के लिए आया है, अल कुदूस यानी पाकीज़ा, तो कौन है ये, अंडरलाइन कर लीजिए, रूहिल कुदूस इज जिब्रील अलैहिस्सलाम यहाँ पर, और कुरान पाक में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रूहिल कुदूस इज फॉर जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो फरिश्तों के सरदार है। फिर अल्लाह ताला सवाल कर रहे, क्या, फिर, कुल्लमा, जब कभी, क्या फिर जब कभी, जाअकुम, लाया तुम्हारे पास, क्या फिर जब कभी लाया तुम्हारे पास, रसूलुन, कोई रसूल, कोई रसूल, बिमा, साथ जो, साथ उसके जो, ला तहवा, नहीं पसंद किया, नहीं चाहते थे, अनफुसुकुम, नफ्सों ने तुम्हारी, नहीं चाहा नफ्सों ने तुम्हारी, इस्तकबरतुम, क्यों नहीं चाहा तुम्हारी नफ्सों ने, इसका जवाब अल्लाह ताला ने रीजन दे दिया, इस्तकबरतुम, तकब्बुर किया तुमने। देखिए इस्तकबर में तकब्बुर रूट वर्ड मिलता है, आपको नजर भी आ रहा है, ता काफ बारा, तकब्बुर, तकब्बुर किया तुमने यानी यू वेर प्राउड। फरीकन, फिर, फरीकन एक फरीक को, एक ग्रुप को, एक ग्रोह को, कज़्ज़ब तुम, झुटलाया तुमने, एक ग्रोह को झुटलाया तुमने। कौन सा ग्रोह है ये, रसूलों का, कुछ रसूलों को, इसका मतलब है कुछ रसूलों को झुटलाया तुमने। वो और, फरीकन एक फरीक को यानी कुछ रसूलों को, तक़तुलून तुम कत्ल करने लगे, तुम कत्ल करने लगे, तक़तुलून में त देखिए तुम, फिर कत्ल, तुम कत्ल करने लगे। देखिए इस आयत को फिर से पूरा, वलक़द आतैना मूसल किताब, और
بلا شبہ عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص کتاب تورات اور وقفینا اور پے در پے ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسول کئی رسول وآتینا عیسی ابن مریم اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوس اور ہاتھ مضبوط کیا قوت دی ہم نے اس کو پاک روح کے ساتھ جبریل امین کے ذریعے افکلما کیا پھر جب کبھی جاءکم لایا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما لا تہوا جو کچھ نہیں تم پسند کرتے تھے نہیں تم چاہتے تھے نہیں چاہتی تھی انفسکم تمہاری نفس سے بیکاز استکبرتم تکبر کیا تم نے ففریقاً کذبتم کچھ رسولوں کو تم نے جھٹلایا وفریقاً تقتلون اور کچھ رسولوں کا تم نے قتل کیا قتل کرنے لگے. دیکھیں اس آیت بہت ہی زیادہ شدید آیت ہے یہ اور بہت کچھ سیکھنے ملے گا اس آیت میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی, یہ تو آ گیا اس آیت میں, اور ان کے بعد ہم نے ایک کے بعد ایک کئی رسول بھیجے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا, ہدایت دی اور وہی ہدایت انہوں نے پہنچائی. ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر, زمین کے ہر کونے کونے میں, ہر علاقے میں اپنے میسنجرز بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچائے. تو ابھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک کے بعد ایک رسول آتے گئے. انم کین یو شیئر دیٹ لسٹ بیٹا پلیز. اور آپ دیکھیں گے اس لسٹ میں پہلے بھی پڑھ چکے ہم لوگ. ہاں دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کے اگر آپ پوری لسٹ پڑھتے جائے تو موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے کہیں سینٹر سے تھوڑا نیچے, شعیب علیہ السلام کے نیچے ہے موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام سے آگے ہم پڑھیں گے جتنے بھی میسنجرز آئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے, پھر ذوالکفل علیہ السلام, پھر داؤد علیہ السلام, پھر سلیمان علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, الیسع علیہ السلام, یونس علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم the last messenger. اب اس لسٹ میں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہے بیچ میں 9 میسنجرز, اور the 10th one is عیسیٰ علیہ السلام. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بھی ہو, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, بٹ ان کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ہم کو ملتا ہے, اور باقی اور بھی میسنجرز ہوں گے جن کا ذکر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کیا ہے, بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہوگا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات عطا کی ہے نا, کتاب عطا کی, اور اس کے بعد نیکسٹ کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. تو یہ جو بیچ میں 9 میسنجرز آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اسی کتاب تورات کو ہی آگے پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. دیکھیے ایک دوسری شریعت لاگو نہیں ہوئی, دوسری کتاب نازل نہیں ہوئی, اسی کتاب تورات ہی کا پیغام پہنچانا تھا. یہ بیچ کے آئے 9 میسنجرز کو, سمجھ میں آ رہا ہے. اور باجی ہم کو بتائیں گے انشاءاللہ رسول اور نبی کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے. باجی will you please share that؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہر
ہر پیغام نبی ہوتا ہے، ہر پیغام لانے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے، مگر کچھ نبیوں کو شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا۔ تو یہ نبی بھی ہیں اور ان کو رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی ہیں، نبی صاحب ہیں، مگر جن کو شریعت نہیں دی گئی، جن کو کتاب نہیں ملی، وہ جیسے ابھی بتایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کو عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ فالو کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جب دی گئی انجیل تو پھر انجیل فالو کریں گے ان کے بعد والے۔ تو یہ دونوں بھی رسول، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول، عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول۔ اور پہلے آئے تھے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، دونوں بادشاہ تھے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام کو وہ دی گئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ زبور۔ ہاں زبور، میں نے زبیر بول دی تھی، زبور تھا اس کا نام، زبور، زبیر تو لڑکے کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق۔ اوور ٹو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سارے جتنے بھی نبی آئے وہ سب اللہ ہی نے بھیجے ہیں، اللہ کے میسج کو لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، دیٹ مینس یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا میسج ہے، اور میسنجر بھی اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، جسے چاہا اسے چوز کیا، اور ان میسنجر سے، ان نبیوں سے اپنا کام لے لیا، اور لیکن ان نبیوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، کتاب اللہ کی ہے۔ اوکے، اور اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کا پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ دیکھیے اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہو، اتنے سارے نبیوں کو بھیجا، تو گائیڈنس کا اللہ نے پورا انتظام کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو بیچ میں آئے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے یحییٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر ان کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ مریم کے بیٹے، مریم علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا باپ کے پیدا کیا، وداؤٹ اے فادر، بیکاز مدر مریم واز a clean pious woman۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کے کلمے سے پیدا کیا، وداؤٹ اے فادر۔ اللہ تعالیٰ نے بس کن کہہ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی امی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ان کی جو روح ہے اس نے جسم کا فارم لینا شروع کیا، اور پھر ان کی پیدائش تو نارمل ڈیلیوری کے جیسے ہوئی، بٹ وہ کن کے کلمے سے پیدا ہوئے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کروائی بروح القدس، جبریل امین کے ذریعے۔ اور جو کھلی نشانیاں ان کو دی گئی تھی، بینات، کھلی نشانیاں کون سی دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ آپ لوگ جانتے ہیں کیا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ لیٹ می سی آپ لوگ کتنا، ہاؤ مینی آف یو آر وتھ اس؟ 80 آر دیر، ماشاء اللہ۔ یس، انمیوٹ ہے بیٹا انم، 2 لوگوں کو انمیوٹ کرنا 1 by 1۔ یس، چاندہ آنٹی بولیے۔ السلام علیکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بخشش تھی کہ وہ کوڑی اور لیپریسی کو کیور کرتے تھے، اسکن ڈیزیزز کو۔ اوکے اوکے۔ السلام علیکم۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھے کو اچھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ کرشمہ دکھایا تھا۔ اوکے اوکے، الحمدللہ۔ زینب؟ وہ اپنے کریڈل میں بات کرتے تھے۔ اوکے، ویری نائس، ماشاء اللہ۔ یس نیلوفر؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی وہ جو کھا کر آتے تھے لوگ، وہ بتاتے تھے کہ کیا کھا کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے، اور انہوں نے زندہ کیا تھا ایک مردے کو۔ اوکے، ویری گڈ۔
मुमताज सलीम। मुर्दे को जिंदा करते थे माशाल्लाह। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बाकी लोग भी माशाल्लाह आप सबके जवाब सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके जवाब में एक चीज मिसिंग थी, उसको आप अभी ऐड कर दीजिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ये सारे मौजज़े जो भी आप लोगों ने बताए वो सब करते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौजज़ा अता किया था, और जब अल्लाह सुब्हानहू ताला की मर्जी होती तो फिर वो क्या करते, कोढ़ी को भी अल्लाह के हुक्म से कोढ़ी कर हाथ फिराते तो वो ठीक हो जाते। इसलिए उनको जो लक़ब मिला था मसीह, मसीह का मतलब हाथ फेर कर, हाथ फेरना, मस करना यानी टच करना, मसीह यानी हाथ फेरना। तो वो हाथ फेरते थे कोढ़ी के लेप्रेसी वाले के बॉडी पर, स्किन पर, और अल्लाह के हुक्म से भी इज़्निल्लाह वो ठीक हो जाता। फिर कोई ब्लाइंड है जो बाय बर्थ ब्लाइंड होता, उसके भी आंखों पर हाथ फेरते तो भी इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो अंधा भी देखने लगता। वो जन्म होता, जन्म से। यस, बाय बर्थ बोली ना, बाय बर्थ, जन्म से ही पैदाइशी जो ब्लाइंड है ना, फिर वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता। राइट बाजी, बाजी आप ले लीजिए इसके आगे। हाँ एक मिनट, अभी अंजुम बाजी का जो सवाल था कि उनको कौन से मौजज़े दिए गए, और उसके जो भी आपने जवाब दिए थे वो सब सही थे, मगर जब सवाल किया जाता है तो उसके जवाब में आपने जो भी कहा, जितनों ने दिए वो सब सही थे, सिर्फ एक में थोड़ा सा गलत था कि एक मुर्दे को जिंदा किया। एक मुर्दे को नहीं, वो कब्रिस्तान में जाके जिसका भी नाम लेते थे वो खड़ा हो जाता था, तो वो मुर्दों को जिंदा करते थे, कोई भी मुर्दे को। वो एक में थोड़ा सा था। बाकी जब आप जवाब देते हो और सवाल में ये नहीं पूछा जाता है कि उनको कौन से मौजज़े दिए गए थे अल्लाह के हुक्म से, ऐसा नहीं पूछा जा सकता। तो द क्वेश्चन वाज राइट, बट इन द आंसर्स यू हैव टू मेंशन कि वो जन्म से अंधे को अच्छा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। वो आप सबको ऐड करना है। कोई भी आपको पूछेगा, कभी भी पूछेगा, क्रिश्चियन भी पूछेगा, मुसलमान भी पूछेगा, तो आपको हर जवाब में ये ऐड करना लाजमी है, बिकॉज इन क्वेश्चन इट कैन नॉट बी आस्क्ड, बट इन द आंसर यू हैव टू मेंशन के अल्लाह के हुक्म से। जितनों ने दिया था जवाब सबका सही था। अभी अंजुम, आई वांट टू टेल सम स्पेसिफिक बातें इस आयत के मुताबिक। यस बाजी, प्लीज गो। तो इस आयत में आप सीख सकते हैं। अब देखिए, वर्बल ट्रांसलेशन तो हो गया है। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुली को सर्कल करिए। उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? दो पेश नजर आ रहे हैं, और बी तो यानी 7। बी के असल में 17 मायने होते हैं। औज़ु बिल्लाह, वहां क्या आया? 7 अल्लाह के। बिस्मिल्लाह, फिर से 7 अल्लाह के। ऐसा बी जो है अरबी में बेजेर बी के 17 मायने होते हैं, वो तो अलग बात है। तो यहाँ बी तो आ गया है कि 7। अभी रसूल आया है, रसूल, और नीचे आया है रसूल। बिर्रुसुली व अतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्दुस अफकुल्लमा जाकुम रसूलुम। नजर आया? उसको सर्कल कीजिए और मुझे बताइए दोनों में क्या फर्क है। यहाँ ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे कुरान शरीफ में ये दोनों अल्फाज आएंगे और यहाँ हर एक गलती करता है। उसको ये नहीं पता चलता है कि रसूल में 2 पेश हैं और रसूल में 1 पेश है और 1 जबर है। कोई बताना चाहेगा क्या है इसके अंदर? इसको जिंदगी भर याद रखना है। आधा कुरान आ जाएगा मगर ये बात समझ में नहीं आती हमको। दैट इज माय अनम्यूट करो बेटा। प्रॉब्लम। यस बाजी, हाँ बोलिए, पूछिए। अनम्यूट कर दो जल्दी अनम। यस नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। रसूल जो है वो सिंगुलर है और रसूल जो है वो प्लूरल फॉर्म में रसूल, बहुत से रसूल। हाँ,
हाँ मायने देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है जवाब। अब ये हम जब बोलेंगे ना, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो इसको उसमें बिल्कुल जो है और रसूलुन जो है उसमें डबल पेश नजर आ रहे हैं। रसूलुन जिसमें आपने कहा एक रसूल है, वो उसमें डबल पेश नजर आ रहे हैं। हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं। जी बाजी। और फरीकन में डबल जबर नजर आ रहे हैं। यस। हाँ, फिर दूसरा फरीकन में फिर से डबल जबर नजर आ रहे हैं। यस। अभी 4 हो गए, 2 में डबल जबर है और 1 में डबल पेश है, और बिर रुसुलिन में असल में वहाँ डबल जेर हो सकता है मगर यहाँ नहीं है। तो अब देखिए क्या ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आता है कई रसूल। अभी रसूली जो है ना, ये चारों को तनवीन बोलते हैं। तनवीन, TANVEEN, तनवीन। जब भी एंड में डबल जबर, डबल पेश, डबल जेर आएगा तो उसको क्या कहते हैं? तनवीन। और हमको उसमें एक हर्फ ऐड करना पड़ता है अपनी तरफ से। ट्रांसलेशन में एक वर्ड देखिए नीचे लिखा हुआ है, बिर रसूल के नीचे क्या लिखा हुआ? कई रसूल। अंजुम, यू हैव ट्रांसलेशन एंड दे आल्सो हैव ट्रांसलेशन। यस यस, कई रसूल यहाँ पे स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। आ रहा है ना नजर? तो Yes. कई कहाँ लिखा हुआ है? कई लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। वो तो वहां ऊपर तो लिखा है बिर रसूल, ये तो कई हमने ऐड किया है। आया समझ में? लिखा है ना बाजी, देखिए है कई रसूल। हाँ हाँ लिखा है मगर ऊपर इबारत में नहीं है। जी बी है, बी यानी 7 रसूलों के, ऐसा है उसका ट्रांसलेशन। 7 रसूलों के, ये ट्रांसलेशन है। उन्होंने कहीं कहीं डाला है, वो बिल्कुल सही है। वो उन्होंने अपनी तरफ से डाला है क्योंकि नीचे डबल जेर है, वहां नहीं है मगर होना चाहिए। ठीक है, ये एक बात समझ में आ गई। जी। और उसमें वाव नहीं है, देखिए वाव है, बिल्कुल में वाव है नहीं नहीं। अंजुम, यू ओनली कैन आंसर। और Yes. रसूल वाव भी नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, अभी उधर एक कहाँ लिखा हुआ है या नहीं। कोई लिखा हुआ है? हाँ। ऊपर ऊपर अरबी में तो सिर्फ रसूल लिखा हुआ है, तो कोई ऐड करना पड़ा। जी कोई वर्ड वहां नहीं है अरबी का, मगर हमको कोई ऐड करना पड़ा क्योंकि वहां भी तनवीन है, डबल पेश है। तो ये पूरे कुरान शरीफ में हमारे स्टूडेंट्स काफी गलतियां करते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि बिर रसूलिन में है कई एक रसूल, और रसूलुन 7 कई एक रसूल, और यहाँ पर है रसूलुम। आया तुम्हारे पास, लाया तुम्हारे पास एक रसूल या कोई रसूल। आया समझ में? यस बाजी। आया। अभी हम जाते हैं फरीकन। फ यानी फिर, फरीकन में डबल जबर है जी तो ये तनवीन है, तो वहां फिर से एक ऐड किया गया है। तो एक फिरके को कज़्ज़ब, तुम झुटलाया तुमने। व और फरीकन फिर से डबल जबर है, जी तो फिर एक ऐड करना पड़ा। जी ये 4 अल्फाज इस आयत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको कुरान शरीफ के खत्म होने तक याद रखने हैं। अब आपको अंजुम बाजी ने तो बता दिया कि कौन से वो कभी कौन आया, वो सब बता दिया उन्होंने। 7 से 96 11वां रुकू शुरू हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीना में कई कबीले थे और आपस में दोस्ती रखते थे। अल्लाह ने यहूद से 4 वादे लिए थे, 3 को मान लिया, 3 हुक्म को नहीं माना और 1 को माना, वो आपने कर लिया। और यहूद खुद यहूद से लड़ पड़े, एक दूसरे का खून बहाया, यहूद को बेघर किया, दुश्मन की मदद की, कैदियों को फिदिया देकर पैसों से उनको छुड़ाया। ये सब हो गया था। ये अल्लाह की किताब के साथ मजाक है। दुनिया में भी रुसवाई, क़यामत में भी अजाब। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कौन आया था? उनके साथ 2 at a time, come on, हारून अलैहिस्सलाम। हारून अलैहिस्सलाम। और हारून अलैहिस्सलाम was a born nabi or he was requested by Musa अलैहिस्सलाम to make
अल्लाह रिक्वेस्टेड दुआ की थी उन्होंने. Yes. एग्जैक्टली. मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की थी कि मेरे साथ मेरा एक बाजू मेरे लिए वजीर बना के मेरे भाई को भेज दे. तो अल्लाह ने उनकी बात सुनी और हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की. फिर ज़िलकिफ्ल, फिर इलियास अलैहिस्सलाम, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तरतीब के लिहाज से. और बहुत थे मगर कुरान में ये नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम की मदद जिब्रील अमीन से की जो पैदाइश से पहले वालिदा पर फूंक मारी थी. अभी मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि टोटल कितने नबी आए थे. कम ऑन अंजुम, आप या वो जो अपनी दूसरी होस्ट है, आप दोनों में से कोई दे दीजिए तो जल्दी हो जाएगा. बाजी इसी लिस्ट में या टोटल पूरा पूछ रहे हैं? पूरे अल्लाह ने जिंदगी में कितने नबी भेजे, टोटल ऑल टुगेदर, नॉट इन दिस आयत. समथिंग 1,40,000 ऐसा कुछ है नंबर. हाँ ऐसा कुछ तो है मगर वो गलत है. ओके कोई जी, आप देना बताइए बहन. जवाब देना चाहेगा? एक रजी- हाथ ऊपर है. रजिया रहीम, अनम्यूट कर दो अनम. जल्दी फास्ट फास्ट. हदीस से पढ़नी. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम. 1,24,000 ही सुने बाजी, यही मालूम था मुझे भी. ओके ओके. बाजी आप बता क्योंकि अभी इनफ अभी अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है ये बताइए. कोई हो सकता है? नहीं. नहीं. अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? हमने सही कुछ रसूल. के नाम बताए, कुछ के नहीं बताए, तो अपने कैसे मालूम पड़ेगा? चाइना में चाइना नबी को भेजा था जो उनकी लैंग्वेज जानता था, राइट. और उसका नाम अपने को नहीं दिए कुरान में क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड है. डू यू अंडरस्टैंड नाउ? यस बाजी. तो स्वीट. यस. तो हम बोलने का नहीं मालूम, इसका जवाब क्या? कई नंबर, कई रसूल बोल रहे हाँ हैं ना. नहीं बोलो, नहीं मालूम है हमको. यस. कितने भेजे तो नहीं मालूम ना, क्या करेंगे? नहीं मालूम तो नहीं मालूम. क्यों नहीं? अल्लाह ने बोला कुरान में, क्या बोला अल्लाह ने कुरान में? कि हमने कुछ के नाम दिए, कुछ के नहीं दिए. तो फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हम लोग थोड़ी फरिश्ते. यस अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, दिस इज द आंसर. ये बोलते 1,00,000 जितने हजारों जो बोलते हैं उनको बोलने दो. अच्छा अब हम जाते हैं. अल्लाह वल्ला आलम. दिस इज दिस आई वाज टॉट. अभी कुछ हदीस गैब में आता है ना, ये गैब में आता है. जी हाँ, गैब में आता है. एग्जैक्टली. अभी आप लोग खुश हो जाइए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है. हदीस के उसमें हदीस है, उसमें दुआ वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह उस शख्स का चेहरा बारौनक कर दे जिसने मेरी कोई बात सुनी और उसको याद भी कर लिया, फिर आगे पहुंचा दी, क्योंकि बहुत से बात सुनाने वालों से ज्यादा सुनने वाले अमल करते हैं. तो आप लोग हमारे से ज्यादा अमल करते हो, तो आप लोग के लिए खुशखबरी है. सेकेंड हदीस का मफहूम है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोग जिनको दरवाजे से अंदर नहीं लिया जाता, गर्द आलूद होते हैं, मिट्टी वाले कपड़े होते हैं, अल्लाह उनकी दुआ पूरी करता है. अगर कसम खा बैठे तो अल्लाह पूरी कर देता है. नेक्स्ट हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक खातून घर में बैठी होती है, फिर शौहर उसको शादी करके ले जाता है, उसकी हर जरूरत पूरी करता है, फिर अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो बीवी कहती है, मैंने तो तुझसे कभी कोई आराम पाया ही नहीं. हदीस ओवर. एग्जाम्पल बताऊं, शादी को 23 साल हो गए, अभी मेरे मुंह से 23 निकला. 23 साल हो गए हैं और रोज शौहर को बोलते हैं कि ऑफिस से आने के टाइम पे जरा आप बाजार लेके आ जाना, तो वो बेचारे रोज लेके आते. एक दिन भूल गए तो बोलती कभी भी नहीं लाए तुमने. कितनी गलत बात है. फिर जितने शौहर खुश हो जाएंगे, ज़रीना बाजी ने शौहर के फेवर में बात की और बीवी नाराज हो जाएगी, ज़रीना बाजी कुछ भी बोलते. अभी नेक्स्ट हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के दरमियान सुलह करवाना हजारों साल की नमाज से बेहतर
अंतर है, ये लिख लो। झगड़े तो रोज होते हैं ना आजू बाजू में, खानदानों में, और पता नहीं किधर किधर झगड़े। तो झगड़े के बगैर तो अपना खाना भी हजम नहीं होता ना। अभी लॉकडाउन में नहीं हो रहे क्योंकि झगड़ा करने को जा ही नहीं सकते और टाइम भी नहीं मिलता है। 2-2 घंटे कुरान, 4 घंटे आज कुरान, झगड़ा करने का टाइम ही नहीं है। मगर सुलह तो करवा सकते हो फोन से। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इतना अच्छा पढ़ाया था सीरत में अंजुम बाजी ने, और लोग इतना अमल किए कि कुछ बहनें तो जाके पानी में शहद डालकर पी के भी शरबत भी आ गई। तो उसके बाद अंजुम, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन ही मेरे पास 2 कंप्लेंट्स आ गई। किसकी? शौहरों की। अच्छा, मेरे शौहर ऐसे, मेरे शौहर वैसे। तो मैं बोली तू सीरत में क्या सुनी थी? आपने कैसा सुलह करवाए थे? पूछे थे अली तुमने क्या किया, फातिमा तुमने क्या किया? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। और हजरत फातिमा ने बोले थे कि अली ने मेरे को मारे, अली ने नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे ऐसा ऐसा बोला क्या? कोई नहीं भी। और आप ने पूछा भी नहीं। तो फिर तुम अपने शौहरों की शिकायत मेरे पास क्यों करते हो फोन पर? तो फिर मतलब क्या हुआ वो पूरी सीरत सुनने का? खाली शरबत पीने का बस? कैन यू आंसर दिस? जी बाजी, बिल्कुल हमने यही सीखा है कि जो भी हो चुका मा कद सलफ, जो गुजर चुका, जो हो चुका, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, और फिर वो हमारे अजर में भी लिखा जाएगा इंशाल्लाह। प्लस हमारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अगर हम झगड़े ही करते रहेंगे तो वी आर इनवाइटिंग शैतान अननेसेसरी। और एक हदीस, ओके कैन आई कंटिन्यू? और एक हदीस का मफहूम है, आप ये भी लिख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जत मालूम है ना, लज्जत यानी एंजॉयमेंट, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है मौत। अभी आएगी ये आयत में, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है मौत। मौत का जिक्र खूब किया करो, मौत का जिक्र खूब किया करो। और एक हदीस कुदसी है, जन्नत और दोज़ख, ये नहीं लिखना नहीं है, जन्नत और दोज़ख दोनों लड़ने लगे। बोली मुझ में तो बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले लोग आएंगे, जन्नत बोली मुझ में तो फकीर और मिस्कीन लोग आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, ए जन्नत तू मेरी रहमत है, मैं तेरे जरिए अपने बंदों पर रहमत नाजिल करूंगा। और फरमाया, ए दोज़ख तू मेरे अजाब की निशानी है, तेरे जरिए मैं अजाब दूंगा, तुम दोनों को भरना मेरी जिम्मेदारी है। ओवर। फिर मुस्लिम की हदीस थी ये। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, लंबी उम्मीदों से परहेज किया करो क्योंकि ये दूसरी नेमतों को तुम्हारी नजर में हकीर बना देती है और तुम उनकी शुक्रगुजारी नहीं करते हो। जैसे अगर 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं है तो फिर बस बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए, और वो दोनों बेटियों को हम उन लोग दे फील सो अपसेट एंड सो बैड कि वी आर नॉट वांटेड। ओवर टू अंजुम। फिर शायरी मेरी बाकी है, बाद में करूंगी। चलिए आप अंजुम। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, ईसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी, इंजील। तो इम्पोर्टेंस अल्लाह की किताब है ना, ये मैसेंजर्स क्या है, अल्लाह की किताब। और मौजज़े क्यों दिए गए उनको, ये मौजज़ों के बारे में हम पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े हम पढ़ चुके ऑलरेडी। तो ये मौजज़े इसलिए दिए जाते हैं कि उस वक्त उस नबी के सामने उनकी जो कौम खड़ी होती है, उम्मत, वो कैसे माने, वो क्यों माने कि अल्लाह के नबी है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो अनरियलिस्टिक जो चीजें ये नबी करते हैं अल्लाह के हुक्म से, ये किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। किसी मुर्दा को जिंदा करना, किसी ब्लाइंड को फिर से उसकी आंखें आ जाए, ये तो बहुत अनरियलिस्टिक है। लेकिन यही मौजज़े अल्लाह ताला इसीलिए बताते हैं ताकि ईमान लाए लोग। समझ में आई बात? तो अल्लाह ताला, अब हमने ये मौजज़े नहीं देखे, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। और इस कुरान में अल्लाह ताला ने सारे पहले मौजज़े हमको बता दिए। और कुरान से बड़ा मौजज़ा कोई नहीं हो सकता इस पूरी दुनिया में, इस ज़मीन पर।
एंड ये मौजज़ा अल्लाह के हुक्म से आज हमारे हाथ में है और इसे हम आज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉट ओनली पढ़ रहे हैं, हमको अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म से समझने का भी मौका मिल रहा है। तो अब अमल की बारी है हमारी। अब देखिए यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये रूहुल कुदूस है, जिब्रील अमीन, फरिश्तों के सरदार, इनके जरिए ही अल्लाह ताला ने ये किताबें भी नाजिल फरमाई और ये मौजज़ात भी नबियों को दिए। अब आगे देखिए अल्लाह ताला का जो सवाल है वो यहाँ से शुरू होता है, अफकुल्लमा, क्या फिर जब कभी कोई रसूल आए तुम्हारे पास और वो जो कुछ लाए अल्लाह की तरफ से, किताब या मौजज़ा, तो तुम्हारी नफ्सों को वो पसंद नहीं आया, तुम लोगों को वो किताब, वो अहकाम, वो पैगाम अल्लाह का तुमको पसंद नहीं आया। ला तहवा अनफुसुकुम, तुम्हारी नफ्सों को वो अच्छा ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि तुम तकब्बुर करते हो, तुमने तकब्बुर किया। व्हाट इज तकब्बुर? योर हार्ट वाज फिल्ड विथ प्राइड। और जिस दिल में तकब्बुर, प्राइड भरा होता है, उस दिल में ईमान आ ही नहीं सकता। ये पॉइंट लिख लीजिए, जिस दिल में तकब्बुर होता है उस दिल में ईमान आ ही नहीं सकता। तो फिर यस बाजी लिखा दो डेफिनेशन तकब्बुर। हाँ, तकब्बुर क्या है? हक का इनकार और दूसरों को छोटा समझना, हक का इनकार करना और दूसरों को छोटा। तो इन लोगों ने क्या किया? का इनकार किया, यानी अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल को मानने से इनकार किया मौजज़े देखने के बावजूद, और फिर उनको इनकार कर दिया, उनको माना ही नहीं और अपने तकब्बुर को बड़ा समझा। बिकॉज उनके दिलों में क्या थी? ये दुनिया की मोहब्बत, लालच। और तकब्बुर किससे है? शैतान। सबसे पहले तकब्बुर किसको हुआ था? अभी अभी हम पढ़े थे इब्लीस का जो वाकया था आदम अलैहिस्सलाम का, कितना तकब्बुर था उसके अंदर। और तकब्बुर भी इल्म से भी आता है, नॉलेज से। और माल, दो चीजें हैं जिससे तकब्बुर ज्यादा आता है, एक माल है और दूसरा इल्म है। और तीसरा हम औरतों के लिए देख ले तो हमारी खूबसूरती भी है जो तकब्बुर दे देती है हमको। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं इतना ज्यादा बढ़ गया तुम्हारा तकब्बुर कि तुम्हारे अमल देखो, तुमने क्या अमल किए। Just see, look at these words. For फरीकन कज़्ज़बतुम, तुमने कई रसूलों को झुटलाया। Because of your तकब्बुर, प्राइड, झुटलाया। एक होता है एक्सेप्ट नहीं करना, तो हम नहीं मानते भाई, छोड़ो हम नहीं मानते। लेकिन झुटलाना, ये कहना कि ये रसूल झूठे हैं, नहीं, ये है ही नहीं अल्लाह के रसूल, ये बात झूठ है। तो जब वो कहते हैं ये बात झूठ है, तो दूसरे लोगों के दिलों में भी डाउट आ जाता है, शक पड़ जाता है, और फिर खुद भी ईमान नहीं लाते और औरों को भी ईमान से रोकते हैं बिकॉज ऑफ झुटलाना। ओके। और दूसरी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह फरीकन तक्तुलून, और एक ग्रुप यानी कई रसूलों को तुमने कत्ल भी कर दिया। इस हद तक लेके गया तुम्हारा तकब्बुर तुमको। लुक एट योर अमल, योर एक्शंस, कि कई रसूलों को तुमने मार डाला। जस्ट इमेजिन, इसमें नाम लिख लीजिए। आता है ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल किया था, याहिया अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे उनका भी कत्ल किया था, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कई कातिलाना हमले किए, उनको जहर देने की कोशिश की। यस बाजी, 17 कातिलाना हमले। जी ओ बच्चों बताइए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 कातिलाना हमले किए, उनको जहर दिया, उन पे जादू किया। अच्छा, ये हाँ, कैन आई से अ फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग दिस आयत? यस प्लीज बाजी। ये पहला है ना, फरीकन कज़्ज़बतुम, तो फिर एक फिरके को, रसूलों के एक फिरके को तुमने झुटला दिया।
اور کس کو جھٹلایا یاد ہے؟ یاسین شریف اگر آپ کا ہو گیا ہو تو اس میں اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا ساتھ میں، اور جب ان کی بات نہیں مانی تو اور ایک رسول بھی آ گئے، تو 3 رسول ایک ساتھ پورے قرآن میں صرف یاسین شریف میں ہیں. تو تینوں نے بولے تو تینوں کی بات نہیں مانے، تو ایک آدمی بھاگتے بھاگتے آیا اور بولا کہ یہ سچے رسول ہیں، ان لوگ کی بات مانو، تو اس کو مار ڈالے وہ بیچارے آدمی کو، اور وہ سیدھا جنت میں گیا، اور جنت میں سے ویل وشنگ کر رہا ہے کہ کاش یہ لوگ جو ہے جنہوں نے میرے کو قتل کیے نا، ان لوگ کو معلوم ہو جائے کہ میں جنت میں ہوں. امیجن دا ویل وشنگ آف دیٹ مین. ایک جب یاسین پڑھو گے تو پتہ چلے گا. اور ایک جو ابھی آپ کو تینوں نام بتائے، ایک فرقے کو تم نے قتل کر دیا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی. ابھی سوری، یہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام میں سے کوئی ایک جو ہے، ان کا مجھے آئی ایم ناٹ شیور ریگارڈنگ دا نیم، دونوں میں سے ایک تو وہ بھی منع کرتے تھے. تو لوگوں نے کیا کیا، ان کی ایک بادشاہ تھا، تو وہ بادشاہ کی ایک معشوقہ تھی، گرل فرینڈ تھی، تو انہوں نے منع کیا کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، مطلب ان میں جب بھی اس زمانے میں جو بھی نکاح جیسے بھی ہوتا تھا تو انہوں نے منع کیا تھا. اس زمانے میں شاید 4 سے زیادہ بھی الاؤڈ تھی، تو کہا کہ گرل فرینڈ نہیں رکھنے کا ہے. تو وہ بادشاہ نے کیا کیا معلوم ہے، ان کی منڈی کو کٹوایا، قتل کیا، اور ایک تھالے میں اس کو رکھا اور اپنی گرل فرینڈ کو پریزنٹ کیا ایز اے گفٹ. I was shocked. انجم یہی مجھے بولنا تھا. جی باجی، ایسا تو یہ جو آپ نے بادشاہ کا واقعہ سنایا، تو اس انسان کی گردن کاٹی نا جس نے اللہ کا حکم بتایا لوگوں کو اور روکا اس گناہ سے. تو اگر آج ہم دیکھتے ہیں نا، تو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی اگر اچھی بات بتاتا ہے یا بری بات سے روکتا ہے تو ہم کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا ہے، ہم کو اس پہ غصہ آتا ہے. کوئی اگر ہماری غلطی بھی بتاتا ہے تو ہم کو کتنا غصہ آتا ہے نا باجی. ہٹلر کا خطاب، ہٹلر کا کتاب ملتا ہے. اللہ اکبر. یس. اچھا، ابھی مجھے ایک کویشچن ہے، بہت ریلیونٹ ہے. مجھے پتا ہے ابھی تک ایک ہی آیت ہوئی ہے، بٹ وی آر لرننگ سو مچ فرام ون آیت آلسو، اینڈ ویری ریلیونٹ کویشچن. اگر اس آیت پہ اور غور کریں گے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا نا، اس میں پوچھا کہ پھر تمہاری تکبر کی وجہ سے تم نے ایک رسولوں کے گروپ کو جھٹلایا اور ایک رسولوں کے گروپ کو قتل کیا. اب یہ آیت سورہ بقرہ جو ہے نا، یہ پوری مدنی سورہ ہے، دیٹ مینس ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور مدینہ میں بنی اسرائیل موجود تھے. تو جو آیت بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ سمجھو ایسے کہ بنی اسرائیل سے ہی کویشچنز کر رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم نے یہ کیا. اب جو بنی اسرائیل وہاں موجود تھے اس وقت مدینہ میں، کیا ان لوگوں نے قتل کیا تھا نبیوں کا؟ کیا ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا؟ اگر ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، ان سے پہلے زکریا علیہ السلام تو پہلے آ کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آ کر گئے، یحییٰ علیہ السلام پہلے آ کر گئے، تو آف کورس جو بنی اسرائیل مدینہ میں پریزنٹ تھے انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ایسا سوال کیوں کر رہے کہ تم نے قتل کیا، تم نے جھٹلایا، تم نے تکبر کیا؟ Is there any answer quickly؟ کیا آپ سمجھ رہے ہو یہ کویشچن؟ اچھا، میں آپ کو پوچھنے کے بجائے میں خود ہی آپ کو جواب دیتی ہوں اس کا. ایک منٹ پوچھو نا ہم لوگ کو. پوچھو؟ اوکے باجی، with your permission. Yes زرین. یہودی لوگوں نے. ہاں لیکن آپ سوال نہیں سمجھے. بولیے باجی. سوال یہ ہے کہ یہ یہودی تو پریزنٹ تھے، کیا انہوں نے قتل کیا تھا یا پہلے والوں نے قتل کیا؟ یہودی لوگوں نے قتل کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، ان کو میوٹ کر دو بیٹا. دیکھیں آپ لوگ سوال سمجھ نہیں رہے. ہاں نیلوفر کو انمیوٹ کر دو. نیلوفر، فہیم سلطانہ، سمینہ، انمیوٹ کر دو جلدی جلدی بیٹا. آنا
अंजुम मैं ये सवाल को वापस से कर रही हूँ जो आप आपने कीजिए। यस बाजी। देखिए अभी ये कुरान पाक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। हाँ बाजी वो जो यहूदी प्रेजेंट थे वो भी वही कर रहे थे जो उनके परदादाओं ने। नहीं नहीं, वो लोग नहीं कर रहे थे, नहीं, ये रॉन्ग आंसर है वो लोग नहीं जी। कर रहे थे। अभी अंजुम बाजी वही पूछ रहे हैं आपको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान नाजिल हुआ। कुरान में अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला उस जनरेशन को क्यों पूछ रहे हैं कि तुमने क्यों कत्ल किया, हालांकि उन लोग ने नहीं किए थे कत्ल। यही तो सवाल है। जी फ़हीम सुल्ताना बोल दिया, आपको पता है आंसर? बाजी सवाल मैं नहीं समझी, एक बार बाजी को दोहराई हो। अभी सवाल मैंने दोहराया। बात वो कट जा रहा है, सब बात कर रहे तो आप जाने दे अंजुम, जवाब दे दो। नहीं आप बाजी, आपकी अंजुम बाजी की आती है आवाज, आप बोलिए। है ना, अभी जैसा अभी आप और मैं है, हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग ने किया क्या कत्ल ज़करिया अलैहिस्सलाम का? अपन ने किए क्या? नहीं ना, नहीं किए। नहीं। तो फिर अपने को क्यों पूछ रहे हैं अल्लाह ताला? हाँ, हमारे इसका दादा ने जवाब किए थे, हमारे दादा ने किए थे, इसमें यहूदी की बात नहीं है। जी फ़हीम सुल्ताना आप बोलिए अगर आता है आंसर, वरना बाजी विल से और आई विल से इंशाल्लाह। बाजी आप बता दीजिए जवाब। देखिए अभी अभी आप लोगों में से अभी मैं कुछ बोलूंगी ना तो फिर आप लोग मेरे को बोल दोगे कि तुम 24 हो, ये मुसीबत में आ जाती है। अभी वो जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये किसकी दुआ थी अंजुम? यूनुस अलैहिस्सलाम। हाँ, यूनुस अलैहिस्सलाम की थी ना। तो यूनुस अलैहिस्सलाम वो मछली के पेट में थे, फिर उनका पूरा जिस्म वो हो गया था, फिर अल्लाह ने वो सब किया, तो उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक ही बार पढ़ा था। अभी उसको 1.25 लाख दफा पढ़ने का, ये कहाँ लिखा है? कुरान में और हदीस में नहीं लिखा है। और फिर अंधेरा करने का, और फिर कश्ती भी बनाने की, उसमें पानी भी डालने का, और उसमें डूबने का भी, फिर निकलने का भी, ये पूरा बनेंगे क्या हम लोग? यूनुस अलैहिस्सलाम आज कर रहे हैं लोग, आज कई लोग घरों में ये कर रहे हैं, अंधेरा कर देते हैं, मछली का पेट बना देते हैं, और फिर ला इलाहा इल्ला अंता उसको गिनते रहते हैं, पूरा ध्यान गिनने में उसकी रूह तो फना हो गई। तो अल्लाह ने किधर भी नहीं बोला ये, तो हम करते हैं ना। क्यों करते हैं? मेरी नानी करती थी, मेरी सास करती थी, मेरी सास की सास भी करती थी, इसलिए मैं करती हूँ। तो फिर मैं क्यों करती हूँ? जब कुरान में मालूम पड़ गया तो क्यों करती हूँ? तो वैसा ही हुआ उनके साथ। अंजुम नाउ यू कैन क्लियर दिस। बाजी के इस पॉइंट पे मैं आती हूँ, उससे पहले देखिए आपको एक बात बताती हूँ, एक हदीस, इंशाल्लाह उससे और समझ आएगा। एंड देन वी कम टू दिस। एक हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने गुनाह किया। ओके, एक शख्स ने गुनाह किया, समझो ए ने गुनाह किया, दूसरा उसको रोकता है, तो रोकने वाला ऐसा है जैसे कि वो उसमें शरीक नहीं, क्योंकि उसने रोक दिया। हम पढ़ चुके वो आए थे जिनको बंदर बना दिया था, तो जिन लोगों ने रोका था उनको बंदर नहीं बनाया था, राइट? लेकिन किनको बंदर बनाए? जिन्होंने रोका नहीं। तो रोका क्यों नहीं? बिकॉज वो समझते थे कि ये तो सही कर रहे हैं, इसलिए नहीं रोका ना। तो एक शख्स ने गुनाह किया भी नहीं, लेकिन वो वहां मौजूद था, वो लोग वहां मौजूद थे। अब हम लोग अगर आज हम देखते हैं तो हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, हम वहां मौजूद नहीं थे जब ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ या ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ, लेकिन हम मौजूद नहीं थे। पर कुछ लोग होते हैं जो ये सुनकर उनको वो गलत नहीं लगता। Exactly, that is the answer. यस, जिनको वो गलत नहीं लगता तो फिर वो उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वो उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने कत्ल किया, तुमने झुठलाया, तुमने तकब्बुर किया, बिकॉज उनको ये गलत नहीं लगता था। और आज भी वो वही कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला भी रहे थे, और यहूदियों ने तो उनको वो जहर भी दिया और जादू भी किया यहूदियों ने। समझ आ रहा है? यस बाजी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो इल्जाम लगा,
وہ بولے ہم تمہاری بات کیوں مانے, ہم ہمارے باپ دادا کو چھوڑ دے کیا؟ کتنی بار آئی آتی ہے. یس, ابھی بھی ہم پڑھیں گے آگے کی آیت. سو آئی ہوپ دس از کلیئر انشاءاللہ. اور جو باجی بتا رہے ہیں تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے نا اسلام کی روح کو کیا کر دیا ہے پتہ نہیں. ہم لوگ ہے نا پورا دن بولتے ہم تسبیح لے کے بیٹھے اور سبحان اللہ بولتے, الحمدللہ بولتے, اور پھر جیسے کھانا سامنے آتا ہے تو بولتے ارے یہ کیسا کھانا بنایا ہے, یہ کھلائیں گے کیا میرے کو؟ اب کہاں گیا الحمدللہ, کہاں گیا وہ شکر جو ابھی ہم پوری تسبیح پڑھے نا, دن میں 10 تسبیح پڑھ لیتے ہم, تسبیح فاطمہ کی ہے نا, الحمدللہ کہتے ہیں نا ہم لوگ 33 ٹائمز. اور کھانا سامنے آیا تو بولتے کیسا کھانا بنا کے لائیے, کیا روز دال ہی کھلائے گی میرے کو؟ تو پھر کدھر ہے ابھی الحمدللہ, کہاں گیا وہ شکر؟ سو وہ ہمارے عمل میں نہیں ہے, وہ صرف ہماری زبان پہ ہے. استغفر اللہ. دیٹ از ہاؤ وی ہیو لاسٹ دا روح آف اسلام. جو باجی کہہ رہی تھی کہ صرف تسبیح پڑھ لیتے وہ کتنے بار لا الہ الا انت کی, تو اسی لیے ہمارے اندر کیا نہیں آ رہا ہے, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے نیکسٹ آیت ابھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آیت نمبر 88. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. We are going very slow. 1 گھنٹے میں ایک آیت ہوئی ہماری, بٹ نو پرابلم. پھر سے ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ, کوالٹی آف انڈرسٹینڈنگ, جس سے کہ عمل میں چینج آئے. رائٹ باجی؟ یس ایگزیکٹلی. یس. 88 پہ چلیں گے.